Hello students, so today in this lecture we will be going to study about AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. So as the name suggests, this disease is acquired externally. We will study about all the factors which leads to the occurrence of this disease. Immunodeficiency, that is, in such kind of person immunity is deficient, they have lowered immunity. And syndrome means group of symptoms. So there are group of symptoms which is observed in such kind of patients. So this disease is acquired immunodeficiency syndrome. Now what is the causative organism? So causative organism is HIV virus, human immunodeficiency virus. HIV. Okay. Now the first case which was reported, so it was reported in 1981. This HIV virus is a retrovirus. Retrovirus means they have RNA as the genetic material. So they are having RNA as their genetic material. Okay. Now when an organism has RNA as the genetic material and when it infects the humans, so this RNA will be first of all converted into DNA, and this process will be known as reverse transcription. What is transcription? So we know that central dogma of molecular biology states that DNA will form RNA and RNA will further translate into protein. So this first process was known as transcription, and the second process was translation. Now here in the HIV virus we are having RNA as the genetic material, so this RNA is reverse transcribed into DNA, and the enzyme which is responsible is reverse transcriptase. Okay. Now what will be the mode of transmission? How the HIV virus is transmitted to a healthy person? So mode of transmission. So mode of transmission can be either by the sexual contact with the infected person. It can also occur by blood transfusion. That's why when a blood donor donates the blood, so that blood is tested for different kind of pathogens if they are having HIV virus or any other kind of virus. So if a blood transfusion takes place, if you have transfused blood of HIV patient to a normal person, in that case the normal person will become infected with the HIV. So blood transfusion will also result into HIV if blood is not properly tested. Then use of infected syringes or needles, either in the hospital settings or while taking drugs. Infected needles or syringes may lead to the spread of HIV from infected person to the healthy person. So these are the mode of transmissions. Okay. Now what is the incubation period? Now फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी अवेयर कि इंक्यूबेशन पीरियड आखिर होता क्या है. तो जब आपको इन्फेक्शन होता है एंड जब आपको पहला सिम्टम आएगा, उसके बीच में जो टाइम लैग होता है दैट इज़ योर इंक्यूबेशन पीरियड. तो आप इन्फेक्ट हो गए हैं, उसके बाद में जब सिम्टम्स आता है तो वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है. जैसे कि कोविड वायरस के अंदर इन्फेक्ट हो गया है पर्सन, उसके 7-8 डेज बाद में सिम्टम्स आना चालू होते हैं, तो दिस पीरियड ऑफ 7-8 डेज वुड बी इंक्यूबेशन पीरियड. So in case of HIV, incubation period may be from few months to many years. It may be that a person gets infected with HIV but they remain asymptomatic for a long period of time. For example, 8 to 10 years. After 8 to 10 years, they may start showing the symptoms. Okay. Now, what will be the symptoms? So symptoms include, what are the symptoms? Okay. So the symptoms first of all include bouts of fever, weight loss, and such kind of people have lowered immunity. We will study अभी कि किस तरीके से इसके अंदर टी हेल्पर लिम्फोसाइट का नंबर डिक्रीज होता है, तो इनके अंदर क्या होती है, इम्यूनिटी लोअर होती है क्योंकि टी हेल्पर का नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. इस वजह से दे आर ससेप्टेबल टू दी इन्फेक्शन टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म. Because of lowered immunity, fungus can affect them. In the HIV patients, there is chances of fungal infection in the mouth. तो fungal infection हो सकता है, वायरस इन्फेक्शन हो सकता है, माइकोबैक्टीरियम के लिए ये लोग क्या होते हैं, ससेप्टेबल होते हैं.
इवन पैरासाइट टॉक्सोप्लाज्मा जो होता है वो भी इनको इन्फेक्ट कर सकता है. पैरासाइट टॉक्सोप्लाज्मा कैन ऑल्सो इन्फेक्ट देम. So these are the basic symptoms of a person which is suffering from HIV virus. Now we look at the life cycle of the AIDS virus. So we know that it is a retrovirus. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन कोट होगा. प्रोटीन कोट एनवेलप करता है आरएनए को. वैसे इसके अंदर कितने होते हैं, 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होते हैं, बट सिंप्लीफाइड वे के अंदर हम इसको लाइफ साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं अभी. तो अगर ये हमारी क्या है, मैक्रोफाज सेल है, किसको इन्फेक्ट करेंगे, जाके मैक्रोफाज सेल को इन्फेक्ट करते हैं. सो दिस इज योर मैक्रोफाज सेल. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो आरएनए होगा ये अंदर एंटर करेगा. सो आरएनए इज ट्रांसफर्ड इनसाइड द सेल. नाउ दिस इज वायरल आरएनए. बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वायरल आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू वायरल डीएनए. नाउ दी सेल ऑल्सो हैव न्यूक्लियस. सेल का अपना खुद का डीएनए होगा. सो दिस इज द डीएनए ऑफ दी सेल. अभी जो वायरल डीएनए है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा और सेल के डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है. यहाँ पे ये इनकॉर्पोरेट हो गया है. दिस इज दी न्यूक्लियस ऑफ सेल. ओके, नाउ अब क्या होगा, अब जो सेल है हमें पता है सेंट्रल डॉग्मा के अंदर डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन. तो अब वायरल डीएनए यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया है सेल के डीएनए के अंदर. तो अब सेल क्या बनाने लग जाएगी, सेल विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग वायरल आरएनए. तो अब सेल ये वायरल आरएनए प्रोड्यूस करने लग गई है. हमें पता है आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है. तो अब इसका जो प्रोटीन कोट होगा वो भी मैन्युफैक्चर होता है एंड अल्टीमेटली हमें कंप्लीट वायरल पार्टिकल मिल जाता है. नाउ अब ये हमारी सेल थी. अब इस सेल से क्या होगा, ये जो कंप्लीट वायरल पार्टिकल है ये बाहर रिलीज होंगे. नाउ दीज वायरल पार्टिकल्स विल कम आउट ऑफ दी सेल. अब ये किसको इन्फेक्ट करेंगे, हमारी जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं इनको इन्फेक्ट करते हैं. तो टी हेल्पर सेल के अंदर अगेन ये डिवाइड होंगे. टी हेल्पर सेल में भी क्या होगा, प्रोजेनी वायरसेस प्रोड्यूस होंगे. फिर ये क्या होंगी, बर्स्ट होंगी. प्रोजेनी वायरस कहाँ रिलीज हो जाएंगे, ब्लड के अंदर. सो प्रोजेनी वायरस रिलीज्ड इन ब्लड. देन ये अगेन दूसरी टी हेल्पर सेल को इन्फेक्ट करते हैं. इस तरीके से क्या होगा, टी हेल्पर सेल का नंबर डिक्रीज होता जाता है क्योंकि ये इन्फेक्शन साइकिल क्या करेगी, कंटिन्यू करेगी. ठीक है, सो फर्दर क्या हो जाएगा, टी हेल्पर सेल का नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज होता जाता है. क्योंकि टी हेल्पर सेल का नंबर डिक्रीज हो गया है इसलिए इम्यूनो डेफिशिएंट कंडीशन आती है ऐसे पेशेंट्स के अंदर. दे आर ससेप्टेबल टू अदर काइंड्स ऑफ इन्फेक्शन ऑल्सो. ओके, सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ HIV वायरस. यहाँ पे मैक्रोफाज सेल क्या कर रही है, एक अगर वायरस इंटर किया है तो मैक्रोफाज सेल खुद उसको मल्टीप्लाई करके उसकी बहुत सारी कॉपीज प्रोड्यूस कर रही है. तो मैक्रोफाज सेल किसकी तरह एक्ट कर रही है, एज द सेल्यूलर फैक्ट्री ऑफ HIV, एज द फैक्ट्री ऑफ HIV वायरस. ठीक है, तो खुद मैक्रोफाज सेल इसकी फैक्ट्री की तरह एक्ट करती है एंड इनके नंबर को क्या करती रहती है, इंक्रीज करती रहती है. सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ HIV वायरस. अब हम देखते हैं कि इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट किस तरीके से होता है. तो इसके अंदर डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है एलाइजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से. ठीक है, एलाइजा टेस्ट अलग अलग टाइप के होते हैं. एलाइजा टेस्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास में ऐसी टाइटर प्लेट गिवन होती है. इस टाइटर प्लेट के अंदर ऐसे वेल्स हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं. फिर हम क्या करते हैं, या तो ये वेल्स एंटीजन से कोटेड होंगे या पर्टिकुलर एंटीबॉडी से कोटेड होते हैं. फिर हम इसके ऊपर हमारा जो सैंपल होता है उसको लोड करते हैं एंड हमें क्या मिलता है, हमारा रिजल्ट मिल जाता है. एंटीजन एंटीबॉडी की इंटरैक्शन जो होता है वो बेसिस होता है इस एलाइजा टेस्ट का. एंजाइम लिंक्ड क्यों कहते हैं, जैसे कि अगर ये वेल कोटेड है एंटीजन से, ठीक है, एंटीजन से वेल कोटेड है यहाँ पे नीचे. अब इससे क्या होगा, हमारी जो एंटीबॉडी है स्पेसिफिक, ठीक है, वो आके बाइंड करती है. अब इस एंटीबॉडी के साथ में हमने क्या कर दिया है, एक हमारा एंजाइम लिंक्ड है इसके साथ में. तो जब आप क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करते हो, आपने कोई भी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐड करा तो ये क्या करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट को कलर्ड करेगा, उसको चेंज करेगा एंड हमें क्या मिलेगा, कोई भी कलर्ड रिएक्शन मिलेगा. सपोज करो ब्लू कलर मिला तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा सैंपल पॉजिटिव है या नेगेटिव है उस पर्टिकुलर डिसीज के लिए. ठीक है, सो दिस इज द बेसिक टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट अस्से.
Now in the next lecture we will study about cancer.